alignment. Now in second video we are going to learn about several processes which are used in multiple sequence alignment. So the processes, this is my content which we need to learn. Historic algorithms, which is the basic thing which is used for multiple sequence alignment. What do you mean by historic algorithm? I think you all know about multiple sequence program because you have seen the first video of 5 minutes in which I have explained what do you mean by multiple sequence alignment, and I have coined one problem that in multiple sequence alignment we need to align the various sequence at a time. So we should have a technique which will rapidly align this sequence, and those methods are historic algorithms, which are the processes basically which are the processes which are used in multiple sequence alignment. Okay, the historic programs are used for multiple sequence alignment, which are divided into 3 different types. First is progressive alignment type, iterative alignment type, and block type alignment type. I will repeat it again. For multiple sequence alignment, historic algorithms are used. Right? Historic algorithms are the process which is used for multiple sequence alignment, and they are of 3 types. First is progressive, second is iterative, and third one is block based type. Okay, so we will see these 3 methods one by one. First is a progressive alignment that was developed by Pauline Hogeweg and Ben Hesper in 1984. Remember this thing. Right? What is the nature of this alignment? What is my work? To make you understand the basic thing. Right? So let's see the basic thing. Progressive. The meaning of progressive is when the process is going on. We will not come to the conclusion at the end, but while the process is going on, वो प्रोग्रेस हो रहा है, तभी हम ऐसी मेथड डेवलप करेंगे कि जिससे अननेसेसरी कोई भी चीज़ है वो निकल जाए. राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टूल. जैसे यहाँ पे फिगर में आपको ऑब्जर्व हो रहा है 4-5 सीक्वेंस है. वो सीक्वेंस में जब इनिशियल आइडेंटिफिकेशन चालू किया, जब सीक्वेंस अलाइनमेंट का प्रोग्रेशन चालू हुआ, तो इनको ये समझ में आ गया कि ए एंड बी, राइट, इनिशियल अलाइनमेंट के बाद उनको पता चला कि ए एंड बी के बीच में जो मैचिंग है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर. सी एंड डी के बीच में मैचिंग ज़्यादा है, एंड ई ऐसा सीक्वेंस है जो एकदम अलग ही है. So instead of checking from starting to end for every sequencing, in progressing alignment initial observation होता है, और उसमें उनको अगर पता चलता है कि भाई C और D एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है, A and B एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है, तो what they are going to do? They are going to match A and B sequence completely and C and D sequence completely. They are not going to compare A and C, or they are not going to compare B and D. इनिशियल आइडेंटिफिकेशन से उनको पता चलता है कि जो सीक्वेंस ज़्यादा क्लोज है उस सीक्वेंस का कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन करो. ये करने से क्या होता है? ये करने से टाइम जो है वो बच जाता है. अगर ये 1000 बेस पेयर का सीक्वेंस है, तीनों की तीनों, अरे पाँचों की पाँचों सीक्वेंस, इनिशियली 300 बेस पेयर का हमने आइडेंटिफिकेशन किया, एंड 300 बेस पेयर से हमको ये पता चला कि ए एंड बी क्लोज है, बाकी की तो एक दूसरे से बहुत दूर है. वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर स्पीशीज इज कि जिसमें 70% या 80% जितना डीएनए सिमिलर होना चाहिए. तो उनको ये पता चल गया कि भाई ए एंड बी में स्टार्टिंग में ही कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो ही आज आगे जाके वो एकदम सीक्वेंस एक दूसरे से सिमिलर होगी. सो वो क्या करते हैं? ए एंड बी का पूरा सीक्वेंसिंग करते हैं. अगर ए एंड सी के बीच में 2% सिमिलरिटी भी नहीं है 300 बेस पेयर सीक्वेंसिंग करने के बाद, सो वाई टू कंपेयर इट फॉर द 1000 बेस पेयर? उसको स्टॉप कर दो. जिसके साथ ज़्यादा सिमिलर है उसका सीक्वेंसिंग करो, एंड उसके बाद जो मैचिंग आएगा उसको साथ में रखो, जो मैचिंग नहीं आएगा उसको अलग रखो. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टूल. राइट, प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में सबसे पहले पेयर वाइज अलाइनमेंट होता है, नीडलमैन एंड वुच एल्गोरिदम यूज होता है, और उसके बाद
डिस्टेंस मैट्रिक्स जनरेट होता है। डिस्टेंस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो सीक्वेंस एक दूसरे के नज़दीक है उसको साथ में रखो, जो एक दूसरे से दूर है उसको दूर दूर रखो। अभी तक ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ फाइलोजेनेटिक ट्री। अभी तक ट्री कंप्लीट प्रिपेयर नहीं हुआ है, प्रोसेस प्रोग्रेस में है, इसलिए तभी उस ट्री को जो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और जो एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे उसको कहा जाता है गाइड ट्री, राइट। इनिशियली गाइड ट्री प्रिपेयर होता है, पर फिर जब पूरा कंप्लीट सीक्वेंस अलाइन हो जाता है तभी जो जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फाइलोजेनेटिक ट्री, राइट। ये गाइड ट्री का कॉन्सेप्ट याद रखना, राइट। उसके बाद जो एक दूसरे से नज़दीक है उनको साथ में रखो, जो एक दूसरे के दूर है वो जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएगा गाइड ट्री सजेस्ट करता जाएगा कि भाई A and B इज़ क्लोजर टू ईच अदर, तो उसको साथ में रखो। C and D इज़ क्लोजर टू ईच अदर, तो उसको साथ में रखो। E इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, तो उसको एकदम अलग से रखो। दिस इज हाउ दिस 5 sequences आर बीइंग कंपेयर्ड थ्रू द मेथड विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट। अभी ये जो अलाइनमेंट का काम होता है वो मैन्युअली नहीं होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर। सो दैट सॉफ्टवेयर विच यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट इज क्लस्टर ओमेगा, क्लस्टर एक्स। ये बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है जो ये प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट के बेस पे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। नाउ क्लस्टर का काम, क्लस्टर इज द बेस्ट टूल फॉर प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट, ये याद रखना। दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ एज योर एग्जाम इज गोइंग टू बी MCQ। व्हाई इट इज, व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट इज दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, इट इज़ फ्री, और जो भी विंडोज़, यूनिक्स, मैकेंटॉश जो भी सॉफ्टवेयर्स है विंडोज़ के उसके अंदर ये यूज़ हो सकता है। क्लस्टर ओमेगा के अलग अलग फॉर्मेट है, क्लस्टर W, क्लस्टर X, क्लस्टर ओमेगा, ये वो सारी चीज़ें, राइट। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे आर वेरी इजी टू यूज़। बट इसका ना कुछ एरर है, एवरी थिंग हैज़ सम सर्टेन ड्रॉबैक्स। वैसे ही क्लस्टर ओमेगा या फिर प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट का एक ड्रॉबैक ये है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द कंपेयरिंग सीक्वेंस विद द डिफरेंट लेंथ। अगर आप A सीक्वेंस 1000 बेस पेयर की यूज़ कर रहे हो तो B सीक्वेंस भी 1000 बेस पेयर का ही होना चाहिए। अलग अलग लेंथ के बेसिस आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे डेटा जो है वो फॉल्स मिलेगा आपको। सेकेंड थिंग, इट हैज़ अ ग्रीडी नेचर। ग्रीडी नेचर का मतलब ये होता है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी लाने के चक्कर में वहाँ पे कभी एरर आ सकता है, एंड वंस देर इज़ अ एरर देर विल ऑलवेज बी एरर, राइट। तो दिस आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अलाइनमेंट टूल दैट इज़ क्लस्टर ओमेगा। उसके कुछ ऑप्शंस में दूसरे क्लस्टर्स भी अवेलेबल है जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये आपकी रेफरेंस बुक में से ही लिखे हैं, तो याद रखना नाम। दे कैन बी आस्क्ड इन MCQ, ओके। This is the first method of multiple sequence alignment. I will revise it again. Multiple sequence alignment में एक से ज़्यादा सीक्वेंस को एक टाइम पे ही अलाइन करनी रहती है, तो उसके लिए नॉर्मल डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं हो सकता। कोई फास्ट मेथड चाहिए, तो फास्ट मेथड इज़ द हिस्टोरिक प्रोग्रामिंग, कि जिसकी अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट इज़ प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट, सेकेंड इज़ इटरेटिव अलाइनमेंट एंड थर्ड वन इज़ द ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट। तो उसमें से हमने प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट देखा। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में क्या किसने फाइंड आउट किया था? पॉलिन एंड होगवेग एंड बेन हेस्पर, ये 2 साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था। कॉन्सेप्ट विल बी लाइक दिस कि इनिशियल आप आइडेंटिफिकेशन करो किसी भी सीक्वेंस का, जो ज़्यादा सिमिलर होती है उस सीक्वेंस को कंप्लीट एनालाइज करो। अगर इनिशियल आइडेंटिफिकेशन में ही कुछ सिमिलरिटी नहीं आती है तो उसको कंप्लीट एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है। सो इन दैट केस वी शुड नॉट आइडेंटिफाई दैट सीक्वेंस कम्प्लीटली। इनिशियल आइडेंटिफिकेशन में अगर आपको कुछ प्रोग्रेस मिलता है between the matching, then go for the identification of a complete sequence. उससे क्या होता है, टाइम कंज्यूम जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे प्रोग्रेस हो रहा होता है, वी गेट द गाइड ट्री, there is the result which is obtained will in the form of phylogenetic tree। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मैंने जो मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड एज अ phylogenetic tree। अभी phylogenetic tree जो obtain होता है that is after final result। जब प्रोसेस चल रहा होता है तो इनिशियल जो रिजल्ट अपीयर होता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गाइडिंग ट्री।
गाइडिंग ट्री में जो नज़दीक है वो एक दूसरे के साथ होते हैं, फिर अगर वो दूर होते जाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, राइट। रीड दिस स्लाइड्स वंस, तो आपको पूरी चीज़ का आइडिया आ जाएगा। जो सॉफ्टवेयर इस प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट पे काम करता है उसका नाम है क्लस्टर ओमेगा, जिसके अलग अलग वर्जन अवेलेबल है। इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली, इट इज़ ऑनलाइन अवेलेबल एंड इट सपोर्ट्स ऑल द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स। ओके, उसके कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि उसमें एरर आने के चांस है। वंस द एरर ऑलवेज देयर विल बी अ एरर, तो उसके ऑप्शन में काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट। इन द थर्ड वीडियो वी विल टॉक अबाउट दिस टू मेथड्स, दैट इज iterative alignment and block based type alignment.